I'm a strong believer of peace and ecology, to be honest. I would like a ministry in the country talking about peace. We need a ministry of peace along with the Ministry of Defense who can talk about peace. Do we have a budget for peace? Do we have a budget for ecology? Ministry of Forest, Environment and Climate Change is not equivalent to Ministry of Ecology. Right. जहां मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहने नहीं मिलता, जहां मेरा अपने कमरे के बाहर की दुनिया मुझे वर्चुअली देखना पड़ता है, घर के बाहर मैं सांस नहीं ले सकती, दिल्ली का AQI 900 के ऊपर, अहमदाबाद का न्यू ईयर की इवनिंग में 400 के ऊपर. People need to understand that why concrete is not development, because along with vertical development which is happening, so Yes. well, earlier we were horizontal development, Yes. now horizontal and vertical both are parallelly happening. Yes. So yes, vertical development will help us save the space. So we had a argument that along with vertical development, we'll need to define how much space is required to live. जैसे हमने बात हुई कि अगर हम एक एपिसोड में बात हुआ तो कि पीला चश्मा लगाओगे तो पीला हो जाएगा, लाल लगाओगे तो लाल रहेगा, चश्मा, ग्रीन कलर का चश्मा लगाएंगे तो हम सस्टेनेबल हो जाएंगे. Absolutely. And I must tell you, Vishwam, I remember first time when sustainability was a buzzword in Ahmedabad. Green करना है, Ahmedabad को green करना. Literally at Vijay Char Rasta, there was a building that came up with a green screen on the building. Such an ugly building, and they just put a screen. Facade लगा दिया green color का. And now you see many buildings which are putting these plastic छोटा-छोटा gamla and putting these artificial plants and small wallscapes बना रहे हैं. These are not sustainable activities. These are not at all sustainable activities. Green building कर रहे हैं, very good, करिए green building. पर उस building में सबसे पहले ये तो पूछिए कि आप एक घर में 6 toilets क्यों बना रहे हैं? In the past, I am going back to the last question also and really forcing upon on this green washing thing. Past में one house used to have one toilet and maximum one bathroom to be shared by all family members. There was no mera kamra and tera kamra in the house. The good thing, there was a family bond. There was nothing hidden between family members. Everybody knew each other. Very good thing. Today, parents cannot walk to their children's room without knocking. Children cannot walk to their parents' room without knocking. Everybody has their own toilet full of toiletries. Mind you, every toilet is a burden to sustainability and to the country. More than 60% people in this country still do not have access to fresh water and sanitation. And every urban family, middle class, is having number of bedroom is equal to number of toilets. We are not entitled to talk about sustainability then. And that also, we are washing cars with our fresh water. We are washing floors with fresh water. We are letting the water flow through the sink. Everything we are doing in that sense. Shopping every other day, thanks to all the online shopping. Then doing little bit of sustainability is just consoling your soul, that I am doing little bit. Whereas we have the possibility to do a lot of things. My reduced consumption is definitely going to contribute to society's consumption and definitely make room for those vulnerable, poor people who do not have access to water, access to goods or anything for that matter. Thinking that I will consume and then I will give my leftover to the poor people or to the animals. People give animals leftover food. It is the worst thing you can do, and that to cooked food. So somewhere we have a misunderstanding that in the life cycle chain, humans are the supreme. Right. That is the biggest misunderstanding we have. And within humans also we have discrimination, na? We want upper class, educated, elite, and then also there is a layer comes which is white looking, good looking people.
Within humans also, we are not satisfied that all humans are equal. We have biggest big problem in human discrimination, inequality problem, as we are talking about. So if we are not seeing each other as equal, we are far from seeing animals with empathy. I was just watching a video 2 days ago when a peacock had died and all the villagers were snatching her feathers and taking away. It was really disheartening for me to see. It's our national animal. It is always disheartening to see when we talk about cow meat and we talk about India being uh, a worshipper of cow. Yeah, On cow is considered to be having 33 crore Devi Devta residing, and still we are not able to. In fact, any form of slaughter should be stopped. Uh, Maybe people will have different views. I am a vegetarian and born and brought up in a vegetarian ecosystem, but that does not mean that I will pick up a sword and start killing all the humans who are eating non-vegetarian food. But that's what is happening right now. I'm a non-vegetarian person. I can eat anything and everything in the world. Trust me on that. But how much do I eat? Do I have to eat it every day? No. Human beings were always non-vegetarian. The vegetarianism has come out of religion, out of other things, which is okay. It's absolutely okay. It's for me, whatever you follow as a religion, as a food choice is yours. Absolutely. But then making it as country's goal and then talking about sustainability, climate change, there's a problem. So we will have to return back to roots. We have to pick up a lot of things from our past. Absolutely. And bring in way for a lot of things in future. Absolutely. Because there is science, there is development, there is research. A lot of people like you are constantly working, because we are still learning. Yes. We are everything is evolving situation. So we need development. And also with this podcast, I would want to address to the world that people who have concern about environment does not mean that they are against development. Oh, absolutely not. But it is perceived that if you raise questions, you are against development. But that's not the case. We are all equally concerned about development rather than not being non-concerned about development. So if you make wide roads, great, amazing, you're doing it, but make it sustainable. Make it stay there Absolutely. for a longer period of time. And why not trees along with roads? Why to give a contract only about roads? I understand. Cut trees. I'll come to that part to it. There are a lot of homes. They have made the home in such a way that the tree could grow Absolutely on it. There is spaces for the branches. Same way, we are talking about roads. We are talking about sustainable roads. The roads which could stay for 10 years, 5 years, 7 years. So we'll have to adapt those kind of technology and that kind of quality. So if you are covering the soil and if you're making the road, it has to stay there for a longer period of time. Constant digging in the city has to stop. Absolutely. We are the only one of the cities, I would like to correct it. We are one of the few we are one of the few model cities where the wires are not overhead. And that is why Ahmedabad is the lowest cut in terms of electricity. Our capital is also not left out. They also don't have a complete ground electrification. There are a lot of things, but the roads have to be made sustainable. Yes. We should not wait for flooding to happen. Till the time, there are a lot of times where the flood water and the storm water, they connect with each other, and then the water pollution situation rises up. So, ma'am, how can people who are constantly working in some or the other way to protect nature, what should be their approach to reduce the conflict with people who are pro development, so called pro development,
and also put their point in a very civilized way. Hmm. We should not get uncivilized. We should allow a lot of ideas to float. Absolutely. Civilization is to have less conflict, whether it is with nature, whether it is between you and me. We might have 100 people, and 100 people might have different ideas. So let's not get into a conflict zone, because conflict zone is मैं सही तू गलत, Hmm. तू गलत मैं सही, Yes. ये वाली बात आ जाती है। यहाँ पे कोई सही गलत की बात नहीं हो रही है, बात आ रही है कोलैबोरेशन की, बात आ रही है आगे सीखने की। तो आपका क्या मैसेज होगा हमारे जैसे लोगों के लिए जो एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्ड है और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं या अपनी वॉइस रेस करते हैं, उनको बहुत सारे एडवाइस देने वाले लोग भी आते ही है। आई वेलकम देयर इनपुट्स, बिकॉज उससे मुझे पता चलता है कि लोगों की क्या विचार है, क्या विचार है वो समझ के मैं पॉडकास्ट के ऊपर बेटर कंटेंट रख के मैं ये मीडियम से कम्युनिकेट करना चाहूंगा। हम डेवलपमेंट वाले लोगों को भी बुलाते हैं पॉडकास्ट शो पे और हम उनसे डेवलपमेंट की भी बातें करते हैं, बस साथ में धीरे से उनके ऊपर सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट का एक पर्सपेक्टिव हम रखते हैं कि क्या हम डेवलपमेंट या सस्टेनेबल ये तरीके से कर सकते हैं। हमें आर्मी चाहिए। आज हम बहुत क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं, हम घिरे हुए हैं वो कंट्रीज से कि दे आर रेडी टू अटैक ऑन अस ड्यू टू व्हाटएवर मोटिव्स द वर्ल्ड हैज। इंटरनेशनल पावर्स हैव लॉट ऑफ कंट्रोल. We have an international superpower sitting on our head. We have countries around us who are unstable. So we will need armies to protect us. We had a very amazing conversation previously with Colonel Chandrawat. The first conversation at the studio, which is releasing soon. But, ma'am, we need development. But people who are pro-environment are not against development. So what is your advice to people like us? No, not get into conflict. Ladna nahi. I may be not the right person to give it. I want to start with an example. Just few months ago, before I was leaving for Germany for my new project now, one of my professors from SEPT called me that, Mansi, if you had not been that activist like, I don't know what that means, you would have been a very successful person. That was my teacher's remark to me. And I was so happy that he called by himself and gave this advice to me. And then I did not tell him that I have a big grant to do a project on wardency in Germany. I'm telling you this because I may not be the right person to tell youngsters what they should do. Because for me, a good education is that I learn how to question the system. Now, if question is seen by the system as an objection, that is system's problem. That is our society. That is a cultural problem. And if you recall from your own childhood, if you ask questions to your parents and if it is a difficult question, either they will slap you, which I have received all the time because I was always asking questions, or they will say, बदतमीजी मत करो. ये क्या बेहुदा सवाल है? So, as a society, we are told not to ask questions. As a society, we are constantly told to adjust, not to get into conflict, as you rightly mentioned. I have a disagreement on that. I believe education has to ask right questions. A good citizen is one who is asking the questions to the society and the system. Why is it like this? Why is it not like this if the person is knowledgeable about it? Which is where many people have disagreement with me. And for me, asking question or asking the right question is solving half the problem and one step towards problem solution. And that one right step is extremely important because you have to take the right step. And that's why for me, conflict is fine. I believe in peace and ecology.
I do not believe a country which has more than 50% people living in hunger, sorry to Mr. Colonel who came for your podcast, should spend 30% of its GDP only on army. I don't believe in that. That's my way of looking at the country. I would like my country to have a Ministry of Peace instead of Ministry of Defense and talk about peace to the neighbors. When did India talk about peace to its neighbor? Never. After Gandhi, Nehru, I don't recall anybody talked about peace. So I'm a strong believer of peace and ecology, to be honest. I would like a ministry in the country talking about peace. We need a ministry of peace along with the Ministry of Defense who can talk about peace. Do we have a budget for peace? Do we have a budget for ecology? Ministry of Forest, Environment and Climate Change is not equivalent to Ministry of Ecology. Right. Understand me very clearly, okay? Because Ministry of Forest and Environment has given more forest clearance for deforestation and development than they have grown forest since independence. Which means directly, scientifically, a ministry is created to clear forest and then grow some saplings here and there. You cut forest in Aravali and grow saplings in Andhra Pradesh is not going to work. We don't need to do big things to be sustainable. Actually, we need to do small things. And as an individual, if we are happy doing small things and small changes in my own life, in my family's life, in my friend's life, that is a very successful life and sustainable life. But the thing is, our education system tells me to be successful, to become a big person, to do this, to do that. And I feel my young friends are getting trapped into this narrative that overnight they will become successful. That becoming an environmentalist is like becoming an activist. Becoming an environmentalist is like becoming against a development. No, I'm talking about talk about ecological development. Talk about peace with neighbors. It's not about between the countries. See, what we practice in our house and colony gets upscaled or large scaled between countries. We have problem of water. Rich people get more water, poor people get less water. That is also seen in all the countries. Look at the transboundary water conflict India has actually raged in last 15 years between India, Nepal, India, Pakistan, India, Bangladesh. It is no different than me having more water and a poor person outside my colony not having water. You know, this is where as environmental scholar or a student or an enthusiast, you need to understand the relationship as an individual, what I do, what I think, what I look at the world, how I look at the world is going to translate into larger scale. And that is the impact we have. Whether you are a good politician or bad politician as an individual is impacted in the entire country, you know. So as a good environmentalist or enlightened environmentalist or as a development professional, you have choice how much you want to have a deeper impact, you know, how far you can really go and talk about balancing peace and ecology. Anything that does not give me fresh air, fresh water, peace, biodiversity, for me, that is not a development. So probably Simply put, maybe not just if not concrete, is not development. concrete is not development. Surely taken, agreed, but people need to understand that why concrete is not development, because along with vertical development which is happening, so Yes. well, earlier we were horizontal development, Yes. now horizontal and vertical both are parallelly happening. Yes. So yes, vertical development will help us save the space. So we had a argument that along with vertical development, we'll need to define how much space is required to live. Then there has to be a lot of common resources. So maybe a TV room, which is common for 100 people or 50 people,
people or 20 people. But now we have TV room for everyone. Hmm. Now we have a media room for everyone. Your phone is the media room, the phone for everyone. So everything we use is leaving an impact. Hmm. Everything we use for a longer period of time is a positive impact. Absolutely. अगर रास्ते बन रहे हैं तो रास्ते बने, अच्छे बने, 50 साल का सोच के बने, ना कि सिर्फ ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ तक ही बने। डेवलपमेंट बने पर वो सोच के रहे कि 2030 में और 2036 में क्या हमारा AQI 600 के ऊपर जाएगा, हमारे या 900 के ऊपर जाएगा। मैं लिख के देती हूँ। सो अगर AQI उतना ऊपर गया तो क्या ओलंपिक का स्टैंडर्ड के हिसाब से या तो ओलंपिक होस्ट हो सकता है? नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर वहां पे क्लाउड सीडिंग करवाएंगे, फिर वहां पे कुछ न कुछ तरीके से AQI को नीचे लाने के ऊपर खर्चा करेंगे। पर क्या मैं अभी से अगर ऐसा सोचूं, हमारा इंटेंशन ये पॉडकास्ट से यही है कि हम अलग अलग पॉजिटिव तरीके ढूंढ के लाए कि जिससे शायद कॉन्फ्लिक्ट कम हो, अवेयरनेस अच्छी हो, जो कि हमारा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। मुझे पता कब चलता है, जब मैं कोविड में हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मुझे कचरे का ढेर घर के आगे नहीं चाहिए। मुझे वहां पे कटे हुए पेड़ चाहिए। या तो मेरा एजुकेशन में कमी है, या तो मैं खुद के एक्शन को कुछ सालों तक डिले कर रहा हूँ। पहले से बताया गया है कि पेड़ लगाना जरूरी है, पर कितने लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। हम पेड़ लगाए, हम कचरा हटाए, कचरे को रिसाइकल करें, अपसाइकल करें, कचरा कम करें। क्योंकि मेरे पहला स्टेप। हाँ, तो हम क्या, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी एक वन ऑफ माय कॉलीग वी वर सिटिंग एंड सेड दैट वी आर एक्सपर्ट्स इन कचरा करने में, हम एक्सपर्ट। बिल्कुल। And that starts not only with solid waste, it's everything. Absolutely. तो A mind polluted is a polluted society. Absolutely. So coming to this, where कचरा हम कम करें, कोई भी अच्छी चीज होगी ना, हम उसको तोड़ फोड़ जल्दी देंगे, हम उसको बिगाड़ जल्दी देंगे। पब्लिक असेट्स जो होगी हम उसको तोड़ फोड़ करेंगे। वो तो मेरा नहीं है, हम उसको ढंग से नहीं रखेंगे। तो जब हमें डेवलपमेंट सीखना है तो हमारे सिटीजन्स को ये समझना पड़ेगा कि कॉमन मेट्रो रेल हो या हमारी ट्रेन हो, उसको हमें सही तरीके से यूज करना है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, शेयर्ड है, वो शेयर्ड है। और अगर मैं वो ट्रेन के अंदर कम खर्चा करूंगा तो मेरे और कंपनी, हमारे देश की इकोनॉमी में एक सपोर्ट बनेगा। अगर हम पानी कम यूज करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पैरेलली अगर मेरी धरती में पानी कम जाएगा तो कुछ सालों के बाद हमारी कुछ जनरेशन के अंदर पानी की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। मिल रही है, ऑलरेडी मिल रही है, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है, बट और बढ़ोतरी में कमी होगी। तो अगर हमारा डेवलपमेंट मॉडल ऐसा हो कि जो फोर्स करे कि अगर आपने इतना पानी नहीं बचाया तो आपको इतना पानी नहीं मिलेगा। वाटर टेबल को कब हम, जब एक्सट्रीम सिचुएशन आएगी तभी हम जाके देखेंगे, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द कमिंग जनरेशन। एंड प्रॉब्ली जैसे हर 30-40 साल में सरकार बदलती है और फिर पुराने स्केपगोट को गाली दी जाती है और नहीं आती है, तो अब ये सरकार कुछ करके जाएगी, फिर वो वापस पूरा जनरेशन बदल जाएगा कि नहीं हम नया लेके आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें डेवलपमेंट, अब अगर हमारी बातें पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, अगर वर्ल्ड डायस्पोरा में हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे धीरे धीरे ला रहे हैं, हम 3rd नंबर पे इकोनॉमी है, तो हम 3rd नंबर से 2nd नंबर पे आए, वो सिक्योर कर ले कि फ्यूचर में हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं, तो तब हम हमारे रिसोर्सेस बचाएंगे। जैसे डेबिट क्रेडिट की बात आती है, probably I'm taking this as an opportunity to build this up. Yes. Not taking a lot of time for not letting you talk, you're a knowledgeable person, but having a perspective on this, कि जैसे डेबिट क्रेडिट की बात होती है कि अगर मेरे पास जितना पैसा है
उससे ज्यादा अगर मैंने खर्चा किया, इंडियंस आर नोन फॉर सेविंग, बचत करने में इंडिया के लोग नंबर 1 है, बिकॉज वी आर अ गोल्ड इकोनॉमी। हम बचा के सोना ले लेते हैं। ग्रेट, यू आर सेविंग योर रिसोर्स। लाख रुपया कमाया, 10,000 सोने में डाल दिया। तो आज बिकॉज ऑफ अभी सोने का प्राइस बहुत बढ़ा, तो ओवरनाइट इंडिया की वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ गई। पर हमारे पास वो बचत का माइंडसेट है, तो वो हम नेचर के बचत में क्यों नहीं यूज करते? ये मेरा सवाल है। नेचर की बचत पे हम इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि हम नेचर को अपने से अलग देख रहे हैं। हम अब अपने आप को फूड चेन में टॉप ऑफ द फूड चेन मानते हैं कि नेचर हमारे यूज के लिए है। मैं इधर हूं और नेचर उधर है, तो हम अपने आप को नेचर का हिस्सा नहीं मान रहे। सबसे पहला हमारा जो गलत फहमी है और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, दैट वी आर पार्ट ऑफ नेचर, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा जो एक जो शिफ्ट हुआ है हमारे डेवलपमेंटल नैरेटिव में, उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अलग और नेचर अलग करके किया गया है। ये फॉरेस्ट है, ये पार्क है, और ये सिटी है। पर क्या सिटी के लोगों को सांस नहीं लेना है? सिटी के लोगों को पानी नहीं पीना है? पीना है ना। तो हमने ऐसा कैसे सोच लिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि ये शहर है, यहाँ सब कुछ डेवलप होगा, वहां पे गांव है, उनका पानी, उनका खाना हम सब यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूज करेंगे, और हम लोग गरीब लोगों को और गांव वालों को छोड़ देंगे। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट मॉडल है, इट इज एन इनइक्विटी मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग एज अ सोसाइटी फेल हो गए हैं। और मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है और उसको फर्स्ट इकोनॉमी बनना है। किसी भी देश का डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ रॉन्ग इंडेक्स टू चेक ह्यूमन डेवलपमेंट। आपने अगर देखा है कि दो तरह के इंडेक्स को हम देखना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इकोनॉमिक। तो हमारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम नेचुरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलपमेंट इंडेक्स मानते हैं, जबकि डेवलपमेंट शब्द जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज से भी नीचे है, और मैं आपको बता दूं नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश से भी पीछे है, श्रीलंका से भी पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत होता है कि जहां डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमी इज इक्वल टू डेवलपमेंट करके देखा जाता है। नहीं, वेरी आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन पे ही जाते हैं ना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन गांधी के ही शब्दों से आया है। ये जो आज मुझे नेचर मिला है, ये मेरे पास फ्यूचर जनरेशन से लोन पे है। आज मैं आई विल यूज इट सो मच दैट देयर इज इनफ left for the future generation. That is the foundation of sustainable development goal, which was actually defined much before Gandhi even knew that sustainable development goals will come. And this was first time global governance की बात हुई है जब sustainable development goals आए हैं, millennium development goals के तहत। उसके पहले कोई global governance था नहीं दुनिया में। सब कंट्रीज अपना जीती थी, सब स्टेट, सब शहर अपना अपना रहते थे, कंट्री वाइज एक डेटा होता था। अब ग्लोबल डेटा होता है, उसकी नींव गांधी के शब्दों पे रखी गई है, और वो ये सभी शब्द मैं आपके साथ यूज कर चुकी हूँ। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर, देयर विल बी नेवर इनफ फॉर द ग्रीड। तो सस्टेनेबिलिटी की जब हम देखते हैं, हम नेचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको नेचर का हिस्सा बन के देखना है कि नेचर में और लोग भी तो हैं। तो मेरे लिए जिस भी डेवलपमेंट में, मैं फिर से दोहराऊंगी, साफ हवा, साफ पानी, चहचहाती चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर नहीं है, घूमते हुए जानवर फ्रीली घूम नहीं सकते, वो डेवलपमेंट मेरे कोई काम का नहीं है। तो cities can be designed in such a way where you have urban forest, where you have lakes, where you have parks, where you have gardens, and also your own house. हम बात कर रहे हैं कितनी बिल्डिंग बनाएंगे। अहमदाबाद is one of the
cities which has highest number of vacancy rate means खाली buildings. कितना बनाएंगे बिल्डर्स लोग, कितना बनाएंगे अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए बिल्डिंग और सड़कें मत बनाइए, अपने बच्चों के लिए फ्रेश एयर, फ्रेश पानी, पेड़ छोड़िए। चिड़ियों की आवाज अगर आप रोज 1 घंटा सुनते हैं तो आपका मेंटल हीलिंग होता है, आपके कानों में प्रॉब्लम नहीं होती। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ। रोज अगर आप 1 घंटा सन बेदिंग, फॉरेस्ट बेदिंग मीन्स ग्रीनरी के नीचे वॉक करेंगे, यू एक्चुअली कैन रिड्यूस योर मेडिकल बजट बाय हाफ। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं हमको दे रही है, सिस्टम ऐसा क्यों नहीं दे रही है? तो यहाँ जाके प्रॉब्लम आती है। मैं एक्चुअली, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ। तो मेरा यही कहना है यंगर जनरेशन के, ऐसे सवाल पूछिए ना। ऐसा बिल्डिंग और डेवलपमेंट का क्या फायदा जहां मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रहने नहीं मिलता, जहां मेरा अपने कमरे के बाहर की दुनिया मुझे वर्चुअली देखना पड़ता है, घर के बाहर मैं सांस नहीं ले सकती। दिल्ली का AQI 900 के ऊपर, अहमदाबाद का न्यू ईयर की इवनिंग में 400 के ऊपर। मैं विलियम्स हावन में हूँ अभी, जर्मनी में, नॉर्दर्न जर्मनी में। वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड फ्रेश एयर यू कैन एवर एक्सपीरियंस इन लाइफ। 8-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मैं रोज वॉक करती हूँ हर दूसरे दिन, बिल्कुल थकान नहीं होती। यहाँ 2 किलोमीटर हम चल नहीं सकते। पहली बात तो पेडेस्ट्रियन वॉकवे नहीं है। ज्यादातर वॉकवेज में रईस लोगों ने सो कॉल्ड ग्रीनरी ऑफ सस्टेनेबिलिटी लगा रखा है, एनक्रोच करके। देखिए, जब रईस लोग एनक्रोच कर रहे हैं पाथवेज पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक फुटपाथ में अगर गरीब इंसान है तो प्रॉब्लम है। एक तालाब में अगर गरीब लोग किनारे पे बैठे हुए हैं क्योंकि आपने उसको कचरा घर बना दिया तो प्रॉब्लम है। पर एक तालाब को भर के एक अगर बिल्डर ने उसमें बिल्डिंग बना दिया तो समाज को प्रॉब्लम नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है एक डिस्क्रिमिनेटिंग वर्ड है। किसका डेवलपमेंट? अगर देश की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा 2 बिजनेसमैन का होगा तो वो देश की जीडीपी नहीं बढ़ाया, 2 बिजनेसमैन को बढ़ाया, 4 बिजनेसमैन को बढ़ाया। तो ये जो पूरा थिंकिंग है ना, हम लोग थियोरेटिकली, ये एक मैस्कुलाइन आइडिया है। This comes from patriarchy. This comes from man dominating society. And the only word I like about development is man-made disaster. Man really made a disaster out of the society. You know, 1 घंटा अहमदाबाद में पानी गिरता है, घुटने तक पानी भर जाता है। आपने क्या किया डेवलपमेंट में फिर? We have all the science, all the education, everything. फिर ऐसा क्यों होता है? आपको तो मालूम है ना, पानी गिरेगा तो आपने तो ब्रिज डिजाइन किया, नाला डिजाइन किया, तो पानी क्यों आया? तो जैसे ही आप डेवलपमेंट करने जाते हैं तब आप डेवलपमेंट सागा और रागा गाते हैं। जैसे ही फ्लड आता है तो आप उसको भगवान की देन बोल देते हैं। ऐसे नहीं होता। सो इन शॉर्ट, वी हैव लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, what we are missing is morality. We are really bankrupt in moral science. We are bankrupt in conscience. जिस देश में 500 550 करोड़ में एक आदमी को हम स्पेस पे भेज के सब लोग टीवी देख के ताली बजाते हैं, उस देश में वो 500 करोड़ में 550 से ज्यादा सैनिटेशन वर्कर्स 5 साल तक मैनहोल में मैनुअली नहीं घुसते। अगर हमने 550 मैनहोल मशीन्स खरीद के मैकेनिकली हम लोग वेस्ट निकालते। पर मैंने और आपने समाज में क्या सेलेक्ट किया? हमने सेलेक्ट किया 550 करोड़ डाल के एक आदमी को स्पेस पे भेजेंगे और ताली बजाएंगे, फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम रील बनाएंगे। और जब वो आदमी मैनहोल पे बैठा, मैनुअली खुद घुसेगा, एक गरीब इंसान जिसको कि हम अनफॉर्चुनेटली लोअर कास्ट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमंस के बीच में, हम जब वहां से चल के जाते, हम उसको थैंक यू भी नहीं बोलते, नमस्ते भी नहीं बोलते, एक गिलास पानी पूछना तो दूर की बात है। तो यहाँ प्रॉब्लम है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। वी हैव एवरीथिंग,
everything that you need to have a sustainable society, especially वेदों में जितने अच्छी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्शन है, कुरान में है, बाइबल में है, जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में, आप कोई भी धर्म में देखिए, ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में है, जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने विस्तार से लिखा है, हमने किसी ने नहीं पढ़ा। हम ढोंगी बाबाओं के भरोसे बैठे हैं कि वो हमको बताएंगे कैसे जीना है। राइट। हम लोग गलत हो गए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग सब कुछ शॉर्टकट में सक्सेस चाहते हैं और शॉर्टकट में ही सोल्यूशन चाह रहे हैं। शॉर्टकट में देयर इज नो सोल्यूशन। स्लो लाइफ, स्लो फूड, स्लो लिविंग इज अ सस्टेनेबल लिविंग, मुझे ऐसा लगता है। तो यंग लोगों को स्लो डाउन करना बहुत जरूरी है। WHO कहता है अब यंग यूथ इज गोइंग अंडर हाईएस्ट एंजाइटी एवर रिकॉर्डेड। How will you slow down in life? Slow down or slowing down, slow food, slow lifestyle is the sustainable lifestyle. So, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि भाई पेड़ को बचाना जरूरी है, तो वो एक अवेयरनेस हुआ और कंजर्वेशन अलग चीज हो गई। पता होना और उसको अमल में रखना वो अलग बात है। आज एक पेड़ को काटा जाता है और 100 पेड़ लगाए जाते हैं। और so conservation is important. Then comes the question of restoration is important. So ma'am, how do you really work that putting new trees is restoration? जितना मेरे को आपसे पढ़ाई मिला हो मुझे थोड़ा सा पढ़ाना ठीक से पड़ेगा। तो मैम अगर हमें कोई हम फॉरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं या जैसे आप जितना भी मैंने पढ़ा और जितना जाना कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये जगह पे पहले क्या था। बिल्कुल। फिर जाके हम कुछ बदल पाएंगे। हम सीधा पेड़ लगाना शुरू कर देते कि हमें पेड़ लगाना, तो वो एक प्रॉब्लम है। अभी उसके ऊपर जाएंगे, पर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सिटी की बात आती है कि सर सिटी में हम पानी को कैसे बचाए, नंबर 1। और सिटी में हमारे एरिया में, मैं तो दूर की बात नहीं कर, पहले मैं बात बोल रहा हूँ, मेरे बिल्डिंग है तो मेरे बिल्डिंग में कितना पानी बरसात से आ रहा है हम उसको पकड़ ले और फिर वो पानी हम लेक तक पहुंचा दे और लेक या नदी तक पहुंच जाए, जैसा वो जगह का टोपोग्राफी होगा। लेक में हम पानी बचाते हैं, लेक से हम करें और हम ग्राउंड वाटर का मिनिमम यूज करें। तो मैम ये कैसे हो सकता है, क्या ये मुमकिन है इतने बड़े कंट्री के अंदर? इतने बड़े कंट्री और इतने बड़े पॉपुलेशन का हम हमेशा दुहाई देते हैं जब हमसे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है हम इतने अच्छे स्थिति में है कि हमारे पास पॉपुलेशन है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बात आती क्या हम करना चाहते हैं। बड़े कंट्री में बड़ा काम नहीं करना है। मैं और आप तो इंडिविजुअली है ना, मेरा सोसाइटी और बिल्डिंग तो एक ही है ना, मुझे बाकी लोगों के बारे में क्यों सोचना। जैसे आपने भी सवाल पूछा कि अपने में हम क्या कर सकते हैं। हर बिल्डिंग में आपको सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, बट उससे भी पहले मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं हम गलत हो गए हैं। इन डेवलपमेंट नैरेटिव जो हर फ्लैट में, हर घर में 3 से 4, 5 टॉयलेट्स होते हैं, मैं कई बार वर्कशॉप करती हूँ तो ऐसा बोलते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी के पहले कदम में ही तो हम गलत हो गए हैं। टॉयलेट कंज्यूम्स मोर वाटर, बट अब हम वहां से आगे बढ़ के देखें कि हम क्या मिनिमम कर सकते हैं, तो हम वहां पे भी, कैन यू रिड्यूस योर वाटर कंजम्पशन, राइट, कैन यू ऑल्सो रीयूज योर रिजेक्ट वाटर। जैसे सब लोग घरों में एक्वागार्ड लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है वाटर प्यूरिफायर का रोल उतना नहीं है। आपको आपके जॉइंट पेन्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं क्योंकि डीमिनरलाइज हो जाते हैं वाटर प्यूरिफायर्स। लाइकवाइज अभी एयर प्यूरिफायर आ रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट हार्म दे आर गोइंग टू डू टू योर बॉडी। जितना वाटर प्यूरिफायर ने हार्म किया है अपने बॉडी को, उससे कहीं ज्यादा उसने बेसिकली हमको फायदा दिया है। तो हम लोग जो उसमें जैसे 1 लीटर पानी में, वाटर प्यूरिफायर में 3 लीटर पानी तो वैसे ही निकलता है वेस्ट। क्या आप उसको सही यूज कर रहे हैं कि सीधे ड्रेन में जाने दे रहे हैं? आप उसको यूज करिए, वो कहीं पे भी नहाने में भी यूज हो सकता है, किसी में भी यूज करिए। आप जैसे ही उसको यूज करने लगेंगे आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। आप वाटर मीटरिंग करिए। अगर देखिए, आप इंडिविजुअल लेवल
इंस्टीट्यूशन लेवल और फिर आता है सिटी लेवल और उसके बाद आता है रीजनल और कंट्री। तो ये स्केल में जंप नहीं करना है हमको। सबको देखिए, हम अपने छोटे छोटे एक्शन से इम्पैक्ट तो कर ही रहे हैं प्लैनेट को। अब हम ये बोले कि मैंने अच्छा काम किया और उसका फल मुझे नहीं मिला या मुझे नहीं दिख रहा है, ये गलत होगा। खराब काम करने से तो फल दिख रहा है। हम सबने अनजाने में गलत काम किया है, मैं नहीं बोल रही हूँ हमने जानबूझ के किया है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है ना। Everybody wants to do better for the society. It is our ignorance, it is our lack of education that we are unable to do things, and our lack of willingness to come together and do things. मुझे मेरे सोसाइटी में 4 साल लग गए वेस्ट सेग्रीगेशन में बोलने के लिए, unless and until municipal corporation came and said that we will not collect your garbage if you do not segregate waste. आज भी मैं अपने सोसाइटी में बोल बोल के थक जा रही हूँ कि हमको पेड़ों के नीचे से पत्तियां निकाल के रेगुलर वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। इट इज अ मल्च। हम किसी तरह बायो वेस्ट को अपने सोसाइटी में यूज करें। सोसाइटी क्यों नहीं कर रही अपना बायो वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट यूज क्यों नहीं कर रही? अपना रिजेक्ट वाटर सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में अभी 31 दिसंबर और क्रिसमस के समय फ्रेश वाटर जो गरीबों को मिल नहीं रहा है, आप उससे रोड धो रहे हैं, पार्किंग धो रहे हैं, कार धो रहे हैं, छत धो रहे हैं। क्यों आप इतना पैसा खर्च करते हैं? मैं खुद अपनी सोसाइटी में 40,000 रुपए साल का देती हूँ मेंटेनेंस। तो क्या हम इतनी सारी चीजों में हम एक्स्ट्रा पाइपलाइंस नहीं डाल सकते सब घरों से? तो जो हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी और साइंस है, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि हम सब लोग साथ में मिल के बैठ नहीं रहे हैं और इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसपे मेरा पीएचडी थीसिस भी था और मैंने एलिनोर ऑस्ट्रम नोबेल लॉरिएट हैं, उनके थ्योरी पे काम किया था। कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग साथ में मिलके बैठ के ये नहीं डिसाइड करते कि चलो चल के पानी बचाए। हम साथ में बैठते हैं तो क्रिकेट में कितने बॉल किसने कैसा मारा उस पे हम 2 घंटे बात कर सकते हैं। हम साथ में बैठ के ये नहीं डिसाइड करते कि लेट अस कम एंड मेक आवर सिटीज क्लीन, लेट अस कम एंड मेक आवर सिटीज सेफ, लेट अस कम एंड मेक आवर एयर प्योर, लेट अस कम एंड डू वाटर कंजर्वेशन। हम साथ में बैठ के फिजूल की बातें कर पाते हैं, जो कि जरूरी है दोस्ती बनाने के लिए। ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है उसको थियोरेटिकली। पर उस ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस के आगे जाके हम दोस्त मिलके ये ही नहीं डिस्कस करते हैं कि चलो मिलके कुछ करें साथ में। इट इज अबाउट कोलैबोरेशन। एक सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में आईआईटी, आईआईएम्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर सब है। क्या उनको मालूम नहीं है प्रकृति को बचाना है? क्या उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है। बट क्या हो रहा है? ईगो क्लैशेस। साथ में मिलके बैठ के डिस्कस करें। जब वो साथ में मिलके बैठते हैं, गरबा कैसे नाचना है जब वो डिसाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग कितने हाइट पे होगा डिस्कस हो सकता है, बाइक का रेट कितना होगा डिस्कस हो सकता है, तो मेरे ख्याल से वाटर कंजर्वेशन भी डिस्कस हो सकता है। पर हमारा ओरिएंटेशन नहीं है उस तरफ, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस तरफ। तो जो हम लोग के जैसे जो एजुकेटर है, एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटलिस्ट है, यंग फ्रेंड्स के लिए मेरा मैसेज है, the biggest challenge for us is to actually explain to the societies, explain to our friends and family that this is an important subject. तो हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा to make this subject interesting, make this subject, attractive, so that people listen to us, people think about it, then people will try to understand and then people will engage. पानी बचाने के हजारों तरीके हैं, बट अगर मुझे अहम से शुरू करना है कि मैं कैसे पानी बचा सकती हूँ, पहली चीज तो आप यही करिए कि शॉपिंग बंद कर दीजिए। आपके पास जितना है आपके 6 पुश्ते खा सकती हैं। कम से कम जितना शॉपिंग कर सकते हैं। प्रिजर्व्ड फूड मत खाइए, पैकेज्ड फूड मत खाइए, मत मंगाइए। प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वाटर की बात कर रहे हैं, विजिबल वाटर जिसको बोलते हैं। हमारा मेजर जो प्रॉब्लम है इनविजिबल वाटर, दैट वाटर कम्स इन अ पैकेज फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, कपड़ों के थ्रू आता है। दुनिया में कोई भी चीज बगैर पानी के नहीं बनता। तो आपका कंजम्पशन जो इनविजिबल वाटर कंजर्वेशन ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि वो इनविजिबल वाटर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे आप वेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे आप वाटर पोल्यूट कर रहे हैं, और उस इनविजिबल वाटर में ही ग्राउंड वाटर छुपा हुआ है. Let me give you some simple steps at individual level and institution level and city level what we can do. Individually, I will say first reduce your consumption. But because we all see water as only visible water, I would also like extend it to look at everything through invisible water also. That's why I'm saying reduce your consumption. Now coming to the visible water, जो आपको पानी दिख रहा है, उसको कैसे बचाएं? तो सबसे पहले आई थिंक मीटरिंग ऑफ वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट इंस्टीट्यूशन लेवल, एट सिटी लेवल. लोकल अथॉरिटी शुड थिंक अबाउट, बिकॉज देखिए जब हम बिजली का हमको बिल आता है, वी आर मोर कॉन्शियस, वी नो हाउ मच वी पे फॉर आवर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. आई थिंक likewise middle class and upper elite class must be metered for water consumption, so we know how much. So that's the first step. As a city level you can bring a change, but once I know, I will be more conscious of using water. Like when I come out from one room, I switch off the light. I will also think about switching off the tap, which is not done many times, and this is what we have been learning from childhood, from primary school, कि आपको tap बंद करना है. But tap बंद करने, how much you want to shower, how much you want to bath. I mean, I run workshops and I know when I ask people, people don't know how long they bath, how long they shower. It is about being more accountable to oneself. I should know how much water I have used and where did I use. See, for survival, you only need 10 liters of water. Drinking and cooking में आपका share of water every day. Over and above that, you have bathing water and washing water. This is visible water. At this moment, country allows you your constitutional right as 135 liters per person. Average urbanite gets around 80 liters per person. Gets. Average rural person gets around 40 to 50 liters per person. But when you look into the details of it, there is a problem. 80 liters per urban person does not mean everybody gets 80 liters. It varies from 20 liters to 4,000 to 6,000 liters, as I was telling earlier. That is the inequality. The sustainability's bigger problem is inequality problem. Those who are consuming less are punished more, and those who are consuming more have the luxury to continue consuming more and producing more waste. So you have to make all of us, we have to make ourselves more accountable as how much we consume. It's not only about clothes and goods, it's about water also. Once we are aware that how much I'm consuming, I will be also conscious of not consuming more. That's important. Then you have to do definitely rainwater harvesting, but what is misunderstood by rainwater harvesting is it is not equivalent to roof water harvesting. It is also to harvest rainwater on the ground. You should be able to put your rainwater into the ground there and there only. Only excess water during the rainfall. Right. Heavy rainfall should go out and connect with the local municipal connections. Then major part, we have to understand very simple through human body, a water system. Amount of water you take, the same amount of water you excrete or urinate. Likewise, if a building is consuming X liters of water, it will come out in a wastewater format. A building is a living ecosystem like a human being. So we have to, when we talk about water conservation, we have to equally talk about wastewater, not only rainwater. So every building has now possibility, or we have science and technology now to even make decentralized wastewater treatment, where majority of the water can be used back to horticulture or gardening instead of fresh water being used for horticulture and gardening with every societies. You can use that for cleaning. Then you have the less amount of wastewater going out to the main municipal drains, sewerage drains. So the city has to recycle less wastewater. The entire sustainability is now about less and less and less.
You can construct beautiful structures for rainwater harvesting. You can make it like a landscape design. You don't have to have a boring structure. You can make your wastewater like a beautiful design so that you can use it. Bring children to understand, bring adults to understand, bring women to understand, domestic help to understand that do not waste more water because it is generating more wastewater. We have to do this, otherwise there is a problem. We have to also learn to understand that we are getting subsidized fresh water to consume. That subsidized fresh water should not be misused for other things other than only drinking and bathing. Right. Rest of it, we have to find out an alternate solution. And it is possible. There is no shortage of science now. Right. We have to apply. We have to be knowledgeable. We have to come together and sit and decide. Let us do like annual general body meeting of every society, RWS, Resident Welfare Association, which are registered. They have to sit and decide, should we take up this work like the way they discuss about Garba or New Year events? They have to discuss about water conservation. Right. It is not discussed. Right. As you said about the bills, the water bill, that as you get electricity bill, तो हमारे अलग अलग बिल्डिंग वेलफेयर एसोसिएशन सोलर पैनल्स लगाते हैं कि भाई कम बिजली का बिल आएगा. Yes, because they are aware. राइट. तो सेम वे पानी का भी रिस्टोरेशन, जो छत पे पानी आ रहा है, उसको जब तक इन्फोर्समेंट एजेंसीज या अलग अलग organizations which take care of city management, like Ahmedabad Municipal Corporation, Mumbai Municipal Works. So that kind of enforcement is required. Oh, I must tell you, I forgot to mention that rainwater harvesting in a misunderstood way as roof water harvesting is now mandatory across the country. It's now every building's responsibility to do roof water harvesting. How to implement it, how to monitor it, I think local authorities are struggling. I remember one example from Mathura where they are giving incentive for putting up rainwater harvesting. But problem is that in India, we are very, very smart. That is another problem of sustainability, that we are over smart. People are putting those fixtures, putting those systems, taking pictures, getting the benefit from the local authorities, and they are not using it. We have a polluted mind. That's why the society gets polluted. Having this rainwater harvesting systems in place, parallelly, the flooding issues, I would like to highlight the urban flooding issues. Then there are places where natural calamities come and floods, which are man-made. It's a man-made disaster. But we'll talk about the urban flooding. Due to concretization of the entire city, there is no way the water can go. So the water of Ahmedabad will go to Gandhinagar or maybe 20-30 किलोमीटर दूर, क्योंकि अंदर उतरने की ही जगह नहीं. बिल्कुल. तो वो सिचुएशन में क्या एडवाइस है अर्बन अथॉरिटीज के लिए? क्या छोटी छोटी चीजें वो भी कर सकते हैं जिससे पानी नीचे जाए? क्योंकि कंक्रीट तो बन गया, सब कुछ तोड़ तो सकते नहीं. रोड्स बन गए, बढ़िया है, चलो. फुटपाथ बन गई, बहुत बढ़िया, पर ड्यूरेबल बनाइए, अच्छा है, पर पानी जा नहीं रहा है. तो वो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लोकल अथॉरिटीज में तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, प्लीज लेक्स को एनक्रोच मत करिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड लेक्स आर द नेचुरल स्पॉन्ज ऑफ द सिटीज. उनको जिंदा रहने देना था. आपको मैं बता दूं ऑन रिकॉर्ड, और मुझे कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, पहला थीसिस मेरा मास्टर्स थीसिस सेप्ट में अहमदाबाद 630 लेक्स. देश में पहली बार नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान आता है. 2004 में ड्राफ्ट हुआ, 2007 में आया, 2011 में अहमदाबाद में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसके तहत अहमदाबाद हैड टू डिक्लेयर इट्स लेक्स. 630 in 1997, 122 in 2011. Within 14-15 years, 510 lakes, 20 lakes कहाँ गए? 510 lakes कहाँ गए? A lake lost is a land gained.
तो लोकल अथॉरिटीज लेक्स बेचना बंद कर दे जमीन के जैसे, और हमको एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वी शुड अप्रिशिएट एन ओपन स्पेस। अगर लेक में पानी नहीं है तो हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए एक सूखा तालाब। हमने एक्सेप्ट नहीं किया, नेशनल डेफिनेशन में नहीं आया, इसलिए तालाब मर गए, या तालाब मरे जो है वो जमीन पैदा हो गई, ऐसा हुआ। मेरा एक फेवरेट लाइन है, लेक लॉस्ट इज अ लैंड गेन विच इज बिल्डर्स का आई। लेक फ्रंट बनाते हैं पर लेक तो है ही नहीं, पर लेक फ्रंट बिल्डिंग बिक जाती है। तो अगर सिटी के फ्लड को बचाना है तो स्पॉन्ज का जो सिटी का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में अब चाइना से आया है, इंडिया में भी लगाया जा रहा है। लेक्स को बचाने बहुत ज्यादा जरूरी है, और ओपन स्पेस नहीं है सिटी में। और जो स्पेसेस में कॉन्क्रीटाइज्ड है हम वो तो समझते हैं वहां ज्यादा फ्लो हो रहा है, पानी जाएगा कहाँ? और जो भी लेक में डेवलपमेंट हो रहा है, कांकरिया पहले कंपाउंड वॉल नहीं था, वस्त्रापुर में कंपाउंड वॉल नहीं था, थलतेज में कंपाउंड वॉल नहीं था। मेरे सामने आज की तारीख में थलतेज में 3 राउंड में कंपाउंड वॉल बने हैं, JNNURM में, अमृत प्रोग्राम में, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में। आप मुझे एक सिंपल कॉमन सेंस बताइए, लोकल अथॉरिटी से मेरा सवाल है, अगेन मैं सवाल ही करती हूँ, सवाल पे सवाल, पानी नेबरहुड से तालाब में जाएगा कैसे कंपाउंड वॉल बनाने? आपको समझना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटीज किसी भी तालाब में जिस दिन कंपाउंड वॉल बनाती है, वो कंपाउंड वॉल उस तालाब के लिए फांसी का फंदा है। उस तालाब में पानी जा ही नहीं सकता। आप असरवा देखिए, कितने बड़े आर्किटेक्ट ने डेवलप किया है, बड़े बड़े माउंट बनाए हैं तालाब को खड्डा करके, पूरे असरवा में पानी भरता है, तालाब में पानी नहीं जाता। तो ये जो लेक डेवलपमेंट है ये रॉन्ग है, ये गलत है, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है बताने में। तो जो तालाब है उनको तालाब समझिए, तालाब को गार्डन मत बनाइए, तालाब को चौपाटी मत बनाइए। तो लोकल अथॉरिटी से तो मेरी एक ही विनती है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की इच्छा है, एक तो आप रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है देश में, आप हर बिल्डिंग को पुश करिए, पनिश करिए। अगर उन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाया है तो आप फाइन लगाइए ना, फाइन तो आप लगा ही सकते हैं कि आप नहीं कर रहे। और आप अपनी तरफ से तालाब को तो बचाइए। अगर मैंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग किया और मेरे सोसाइटी का एक्सेस वाटर तालाब में जाएगा कैसे? आपके पास ड्रेनेज सिस्टम होना पड़ेगा ना, आपके पास वाटर वेज बनाना पड़ेगा। अब आपको मैं एक और बात कह दूं, पूरे देश में जो कभी शायद लोगों को पता ही नहीं चलेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम which has happened in the country is this box trains along the road. आप देखेंगे अभी SG हाईवे पे, हमारे आपके यहाँ से ही आधे किलोमीटर दूर पे हाईवे के अलोंग एक बॉक्स ट्रेन बनाया गया, एक चौरस स्क्वायर, उसके अंदर कभी पानी नहीं बहेगा। पर हर रोड में पूरे देश में दोनों तरफ जितनी भी हमारी रोड लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय 3 या 4 टाइम्स कर दीजिए। हमने बॉक्स ट्रेन बनाया कंक्रीट का पानी बहने के लिए, उसमें कभी सक्सेसफुल हम नहीं होंगे। ये लोकल अथॉरिटीज को भी मालूम है, ब्यूरोक्रेट्स को भी मालूम है, पॉलिटिशियंस को भी मालूम है, इंजीनियर्स को भी मालूम है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम विच वी विल नेवर आइडेंटिफाई एज स्कैम। आपने पेड़ काटा, साइड की मिट्टी को कॉन्क्रीटाइज किया, फिर बॉक्स ट्रेन भी बनाया, फिर भी आपके रोड पे पानी भरता है क्योंकि पानी जा नहीं पा रहा है। Why don't we simply understand that water has to flow? It needs place to flow. Obviously, it is going to flow on the road because वो box train में आपने 3-4 इंच का होल रखा है in every 50 meters and 100 meters. इतना सारा गशिंग पानी जब आएगा, गिरेगा, जाएगा कैसे? तो हमने बायोस्वेल्स जो थी, हमारी नेचुरल जो ट्रीज के साथ जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी ग्राउंड की, उसको हमने खत्म कर दिया। हम चाह रहे फास्ट पानी चला जाए। फ्लड होता क्या है? इट इज अ स्टैग्नेंट वाटर एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर। तो हमने जो चाहा हमको वही मिला है। वाटर वाटर एवरीवेयर चाहिए था ना हमको वही मिला है। तो आई थिंक लोकल अथॉरिटीज को गाइड करने के लिए जो लोग हैं, या तो वो प्रिटेंशन में है कि उनको सब आता है,
इस देश में वाटर एजुकेशन नहीं है विश्वम, आपको समझना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन का 20 साल लगाया है वाटर एजुकेशन पे। आर्किटेक्चर, प्लानिंग, इंजीनियरिंग में वाटर पढ़ाया नहीं जाता है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, तो सेंसिटिव तो हो सकते हैं, हम डिस्कस तो कर सकते हैं। तो आप तालाब नहीं बचाएंगे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को आप मॉनिटर नहीं करेंगे, जो कि अब कंपलसरी है, तो हम सिटी अथॉरिटी अभी रेडी नहीं है। जो सिटी अथॉरिटी अप्रूवल देने आती है बिल्डिंग का, हर साल टैक्स कलेक्ट करती है, प्रॉपर्टी टैक्स भी, वो सिटी अथॉरिटी में 2 लोग मेरे ख्याल से जो घर घर जाके एसआईआर कर सकते हैं और सेंसस नहीं काउंट कर सकते, वो अथॉरिटीज में मेरे ख्याल से लोग होने चाहिए जो एक एनुअल मॉनिटर करे या रिव्यू करे, या हमसे मंगाए, हम अपनी सोसाइटी से हमसे मंगाए कि चेयरमैन और आरडब्ल्यूए का चेयरमैन जो है हर साल एक ऑडिट सबमिट करेगा। जैसे हम फाइनेंशियल ऑडिट देते हैं ना हम अपनी सोसाइटी का, वैसे ही हम वाटर ऑडिट क्यों नहीं देते? वाटर ऑडिट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि हम अपना ब्यौरा दें कि इस टाउनशिप ने इतना वाटर कंज्यूम किया और इतना वेस्ट वाटर जनरेट किया, इतना रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया और इतना वेस्ट वाटर रिसाइकल किया। उस हिसाब से लोकल अथॉरिटीज एक्चुअली हमको अवार्ड्स भी दे सकती है। तो ये जो है ना, हमको कैरेट एंड स्टिक सोचना पड़ेगा कि कुछ कुछ पनिशमेंट भी होना चाहिए और कुछ कुछ अवार्ड्स भी होना चाहिए। एक सिंपल उदाहरण दूं, मैं नेदरलैंड्स में जिस टाउनशिप में रहती थी, लोकल अथॉरिटीज हम लोग को पैसा देती थी सुंदर रखने के लिए हमारे स्ट्रीट को। मीन्स फ्लावर्स लगाइए, बेंचेस लगाइए, उसके लिए एक एनुअल फंड था। आपने और जिस भी दिन उनका इंस्पेक्शन हुआ आपने सुंदर नहीं रखा है, तो यू विल बी पनिश्ड। यू मीन्स नॉट यू बट द आरडब्ल्यूए विल बी पनिश्ड। और आपने रखा है तो सोसाइटीज का कंपटीशन होता है, तो अगले साल शायद आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिल सकते हैं, 10%, 20%। तो मैं जो पूरी बात जो है ना सस्टेनेबिलिटी की, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात है। जितना गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी उतना समाज बिखरता जाएगा। हमको गवर्नेंस का हिस्सा बनाइए समाज को। आरडब्ल्यूए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि ये आपका जमीन, आपका देश का जमीन है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी मेरी जिम्मेदारी है। ये लोकल अथॉरिटी को ये अवेयरनेस देना पड़ेगा लोगों को, और इंसेंटिवाइज करिए ना उनको कि आपने अगर इतना पानी बचाया, साल के 10,000 करोड़ लीटर बचाए तो आपको इतना मिलेगा। नहीं बचाया और इतना कम किया, जैसे आप देखिए बिजली के लिए करते हैं, दिल्ली में दिया था आम आदमी पार्टी ने कि आप इससे कम बिजली यूज करेंगे तो आपको फ्री मिलेगा, इससे कम पानी यूज करेंगे तो आपको फ्री मिलेगा, जस्ट टू फैसिलिटेट पुअर पीपल, ताकि उनको मिले। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, या एक गैप रहेगा, इतने में आप एवरेज देंगे और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको फाइन लगेगा। कहीं ना कहीं पानी में ये मॉडल लाना पड़ेगा। राइट। सो या तो ऐसा भी होगा कि अगर आपके वाटर कंजम्पशन ये लेवल पे है और आप इतना कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे में मिलेगा। जैसे आपको 20 यूनिट्स की जरूरत है, आपने 30 किया यानी 10 का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि 20 मेरी नेसेसिटी है। ये नंबर हम समझते हैं ना, इसलिए हमको नंबर से ही समझाना पड़ेगा जनता को। नहीं, पैसे से ही, अगर डेवलपमेंट को हम सिर्फ पैसे से ही तोलेंगे तो पैसे से ही समझाइए ना, उसका भी तरीका है। यानी वही बात हो गई, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी जो डैमेज हो रहा है फ्लडिंग की वजह से, तो उससे हम समझते नहीं। और जैसे पहाड़ी वाले देश में, पहाड़ी वाले रीजन में बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे होटल्स बन गए। बिल्कुल, आप देखिए। और चीजें बदलनी चाहिए, सस्टेनेबल होटल्स ली जाए। जो इंसान ऑर्गेनिक अगर चॉइस करता है तो उसके लिए बेंचमार्किंग क्रिएट कीजिए। अगर आप मिलेट्स बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो उसमें भी आएंगे, बट विल कम बैक टू दैट अगेन।